Just now we have to start the formula, used formula. How can we calculate the formula of this moving coil galvanometer? You can see it is a NS. ये बुक इस डायग्राम है जो आपको कंस्ट्रक्ट ड्राइव करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला, और यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम ओनली. NS पोल A B C D, इट इज़ द कॉयल. इसके बीच में आर्मेचर है, आर्मेचर से ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग उसे नीडल लगी हुई है और नीडल से ये मूवमेंट कराता है. ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट है. तो यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स, या जिसे बोल सकते हैं हम रियोस्टोरिंग टॉर्क. अकॉर्डिंग टू द रियोस्टोरिंग टॉर्क, यू कैन सी द रियोस्टोरिंग टॉर्क, it is denoted by tau is equal to theta c. Okay, c is constant, theta c. And according to the magnetic field, the magnetic force is F is equal to NILB. ठीक है, NILB. So we can put up the value, we can compare this force, and tau is equal to NIAB. It is also pair of force. So we can compare this tau and this tau, इसको compare करेंगे, और compare करने के बाद तो NIAB is equal to थीटा सी. तो इससे हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. अब इन टाउ को, टाउ की NILAB, एल लेंथ इंटू विड्थ है, NIAB टाउ और थीटा, टाउ इजकल टू थीटा सी, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे. इससे NIAB इजकल टू सी थीटा. देन आफ्टर दैट वी विल कंपेयरिंग द बोथ टाउ, तो वी गेट द थीटा इजकल टू NIAB अपॉन सी. ओके, सी. तो विद द हेल्प ऑफ NAB and C, it is the constant. I is not constant, I vary है. तो I is directly proportional to theta. We can write I is directly proportional to theta. If we will increase the value of I, theta also will increase. So it is the formula of this moving coil galvanometer. After that, how can we calculate the current sensitivity? We can define the current sensitivity. Current sensitivity मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन जितना डिफ्लेक्शन हो करंट पर डिपेंड करेगा. Deflection per unit current is called current sensitivity. We can say the ratio of the deflection and flow of current, it is called the current sensitivity. It is denoted by SI. You can see SI से डिनोट करते हैं. तो थीटा की प्लेस में जो वैल्यू आई NIAB, उसको यहाँ पर पुटअप कर दिया है. आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो SI करंट सेंसिटिविटी, इट इज द फॉर्मूला इज NAB अपॉन C. इट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी. अगर पूछते हैं तो इतना भी, इसको भी फॉर्मूला लिखना पड़ता है. Now after that, the voltage sensitivity. Voltage sensitivity मतलब deflection per unit volt, and or we can define the ratio between the deflection and the potential difference voltmeter. Potential difference is called the voltage sensitivity. It is denoted by SV, and V is equal to Y. According to the Ohm's law, V is equal to IR. So we can put the V is equal to IR into this formula. So we get theta is equal to IR. वंस अगेन थीटा की वैल्यू जो NIABC है उसको यहाँ पुट अप कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया. सो वी कैन गॉट द फॉर्मूला ऑफ SB इजकल टू NAB अपॉन CR. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो फॉर्मूले में जितना भी यूज़ होगा वो हम पूरा इसमें ऐसे लिख सकते हैं. तो सर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछें तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई तक ही कर सकते हैं. Suppose just now we have to discuss the advantage of the moving coil galvanometer. So what is the main advantage of the moving coil galvanometer? So we can write it can be made extremely sensitive, so that even to minute current is also electric circuit can be detect. मतलब माइक्रो करंट तक ये मेजर कर सकता है. Then second is, since deflection of the coil of galvanometer is directly proportional to current. Okay. Next is, it is the deadbeat types of galvanometer. It is the deadbeat types of galvanometer. Means why we call the deadbeat types galvanometer? When the coil rotate in the magnetic field, so eddy current are produced in the metallic frame. ठीक है, coil flow होगा तो eddy current develop हो जाएगा in the coil on which the coil is bound. These eddy current produce a damping effect. जो करंट फ्लो होगा इसको डैम्पिंग इफेक्ट बोलेंगे, डैम्पिंग इफेक्ट. हेंस द कॉइल कम्स टू पोजीशन ऑफ रेस्ट क्विकली. ठीक है, क्विकली आ जाएगी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी
made ballistics by using a non-conducting frame instead of the metallic frame। तो ये इस टाइप के हम यूज इसमें एडवांटेज लिख सकते हैं। तो पूरा अगर जितना पूछे उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको लिखना है इसमें। अब एक्सप्लेनेशन में इसका एमीटर, कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर, ये पूछ सकते हैं। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन द एमीटर, ये अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है। सपोज हम गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम सबको यूज़ करते हैं शंट को मतलब लो रेजिस्टेंस वायर है, शंट को अगर यूज़ करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट को यूज़ करते हैं, तो वी कैन से इट इज़ दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ द एमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की तरह काम करने लगेगा अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दिया जाए पैरेलल में, तो दिस कॉम्बिनेशन वो एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा। सपोज इसमें फ्लो ऑफ करंट बाय द बैटरी इज आई एंड आई द करंट इज डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज शंट करंट एंड फ्लो ऑफ करंट आई जी एंड आई एस में डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस वी जी एंड वी एस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन शंट रेजिस्टेंस बोथ आर इक्वल बिकॉज पैरेलल कंडीशन में। उन दोनों पैरेलल कंडीशन को लेकर हम इसमें फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसी से ही निकालेंगे। ठीक है ना। Just now you can see in this diagram, circuit diagram, the flow of current is in IS is the shunt resistance and IG is galvanometer. So both in condition the potential difference V is equal to IG RG, ये गैल्वेनोमीटर के लिए, V is equal to IS RS ये शंट के लिए, दोनों इक्वल होंगे। बोथ द कंपेयर कर दिया तो IG अपॉन IS इक्वल टू RS अपॉन IG, इट इज़ अ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। अब सपोज RS की वैल्यू निकालना है तो RS को IG को इस साइड ले जाओ, तो RS इक्वल टू IG RG अपॉन IS, और IS की वैल्यू क्या होगी, यू कैन सी I इक्वल टू IG प्लस IS, तो IS इक्वल टू I माइनस IG, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा फॉर्मूला यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। इट इज़ द विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑल्सो इन द शंट रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सर्किट डायग्राम वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर में हमको एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, जो वर्क करेगा वो वोल्ट मीटर की तरह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लगेगा। ओके, सपोज वी वांट टू अप्लाई द करंट, इसमें करंट तो चाहिए रेजिस्टेंस पूरे के लिए, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी जी प्लस वी एक्स, एक्स मान लिया अननोन रेजिस्टेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इक्वल टू वी एक्स प्लस वी जी। द वैल्यू ऑफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर, तो वी एक्स इक्वल टू आई जी और आई एक्स। आई जी क्यों, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो हो रहा है, आई जी आर एक्स प्लस इन प्लेस ऑफ वी जी तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आई जी और आर जी, इसमें से आई जी कॉमन ले लीजिए, दैट्स वाई आर एक्स प्लस आई जी, ये बन गया। अब आई जी को इसके वी के नीचे रहे, वी अपॉन आई जी इक्वल टू आर एक्स प्लस आई जी, एंड वी कैन कन्वर्ट इन प्लेस ऑफ आर एक्स निकालना, नॉन रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको वहाँ पर ट्रांसफर कर दो वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, जो कितना रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है सीरीज में, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।